Today I want to discuss a very important and useful topic of grammar which helps us understand and formulate the correct sentences. Unless and until we have complete knowledge of this topic, we sometimes make very wrong sentences and confusion is created. तो जिस विषय के ऊपर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही ग्रामर को अच्छी तरह अंग्रेजी को समझने में और करेक्ट सेंटेंस बनाने में काफ़ी यूजफुल होती है. तो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड हाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. First, we should understand what clause is. Clause could be a complete sentence and a sentence may consist of more than one clause. तो clause जो है वो इसमें verb और subject तो दोनों constituent इसके जरूरी होते हैं. बगैर verb के कोई clause नहीं बनती. जैसे phrase होती है, that is a group of words without any verb. We can say in lieu of, that is a phrase, not a clause. When we talk about clause, then subject and finite verb are supposed to be there. Without verb and subject, we cannot say that we have formed a clause. Now, a sentence may consist of one clause, as in simple sentence we generally say, he gave me a pen. So it is just one clause and it is a complete sentence. But in subordinate sentences, and compound sentences, there are always more than one clause. There is always more than one clause. It may consist of two clauses and sometimes even of three clauses. So today we are going to discuss what is defining relative clause and what is non-defining relative clause and how different rules apply to these two types of clauses. I just give a sentence which will help you understand how non-defining and defining clause make a difference in the sentence. Suppose there is one sentence, children who are intelligent should be sent to school. In this sentence, who are intelligent is a relative clause. And we have not put any comma in this clause after children. But if we put comma after children, and even after the completion of the relative clause, then it becomes non-defining relative clause. Say, children who are intelligent should be sent to school is one sentence. And children, comma, who are sent to school, who are intelligent, comma, should be sent to school early is another sentence. Though the terminology or the words in both the sentences are the same, but only there is a difference of comma, and it makes a lot of difference in the meaning of the sentence. Such पहला जो sentence है जिसमें हमने comma नहीं लगाया उसको हम defining relative clause कहते हैं, और इसमें who are intelligent children को define करता है कि कौन से बच्चे जो intelligent होते हैं उनको हमें स्कूल में जल्दी भेजना चाहिए. तो ये defining relative clause है. अगर हम चिल्ड्रन के बाद कोमा लगा देते हैं, हु आर इंटेलिजेंट के बाद भी कोमा लगा देते हैं, तो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बन जाता है. इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन और उसके बारे में हमें सूचना दी गई है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं. तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं. पहले सेंटेंस में दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो जो इंटेलिजेंट होते हैं और वो जो इंटेलिजेंट नहीं होते. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में चिल्ड्रन को डिफाइन किया गया है कि कौन से बच्चों को स्कूल में जल्दी भेजना चाहिए. तो ये हमें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज से पता लगता है कि उन बच्चों को जो इंटेलिजेंट होते हैं. दूसरे में जब हम कोमे लगा करके रिलेटिव क्लोज बनाते हैं तो वो डिफाइन नहीं करती, वो केवल एक इंफॉर्मेशन हमें देती है. और इसमें चिल्ड्रन अपने आप में डिफाइन है कि बच्चे जो सब इंटेलिजेंट होते हैं उनको हम सबको स्कूल में भेजना चाहिए. So in this way, when we use defining clause and non-defining clause, then there is a lot of difference in the meaning. Just as we say, sometime the noun about which relative clause tells us something,
तो दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड, वी नो विच नाउन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ वी से माई फादर, तो इसमें हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कौन सा फादर. तो ये नेचुरली है कि इसके बाद जो क्लोज आएगी वो नॉन डिफाइनिंग आएगी. माई फादर हु इज ए बिजनेसमैन कोमा इज वेरी हार्ड वर्किंग. तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग लगा करके ही हमने जो है ना रिलेटिव क्लोज यूज़ करनी है. लेकिन अगर हम इस तरह के वाक्य में डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज लगा दें, यदि कोमा ना लगाएं, तो उसका मीनिंग वो बिल्कुल गलत हो जाता है. तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहते हैं, माई फादर हु इज ए बिजनेसमैन विदाउट यूजिंग कोमा, तो इट मीन्स मेरा वो फादर जो बिजनेसमैन है वो ईमानदार है. तो दिस गिव्स रॉन्ग मीनिंग टू द सेंटेंस. सो अनलेस एंड अनटिल we understand the importance of defining and non-defining, we are apt to make very wrong sentences. So in case we know about the implications of defining and non-defining clauses, we can make right sentences. Now there are some differences in the formation of defining relative clause. I will tell you some pertinent rules which have to be taken care of, which have to be borne in mind while formulating defining relative clause. The first noun about which relative clause tells us something, in grammar it is called antecedent. And defining relative clause always is used just after the antecedent. We cannot separate antecedent and relative clause. They go together. The law of proximity applies to them. उन दोनों को साथ साथ रखना होता है. हम ये नहीं कह सकते कि माई फादर इज वेरी इंटेलिजेंट हु इज ए बिजनेसमैन. दिस इज ए रॉन्ग सेंटेंस. हु इज ए बिजनेसमैन इंटेलिजेंट के बारे में नहीं बताता, ये हमें फादर के बारे में बताता है. और ये हु इज ए बिजनेसमैन फादर के साथ ही यूज होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ये लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी ब्रेक हो जाएगा. तो करेक्ट सेंटेंस इज माई फादर कोमा हु इज ए बिजनेसमैन कोमा इज वेरी इंटेलिजेंट. द बॉय हु आई गेव माई पेन इज एब्सेंट टुडे. इन दिस सेंटेंस द बॉय इज ऑब्जेक्ट एंड आई यूज्ड आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन इज सब्जेक्ट. So in such a case, when the subject is there after the relative pronoun, we can use any of these three pronouns, who, whom and that. And in such a situation, even relative pronoun can be omitted. तो इसमें ये है कि अगर शुरू के अंदर जो नाउन है अगर वो ऑब्जेक्ट होता है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट लगा हुआ होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम या दैट इनमें से किसी का भी प्रयोग हो सकता है. और इस तरह के वाक्य में हम रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ भी सकते हैं. ये वाक्य इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, द बॉय आई गेव माई पेन इज एब्सेंट टुडे. तो यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको छोड़ा जा सकता है. और जब सब्जेक्ट हो शुरू में तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन को हम नहीं छोड़ सकते. फॉर एग्जाम्पल the boy who borrowed my book is very poor. Who borrowed my book, इसमें हम relative pronoun who को नहीं छोड़ सकते, लेकिन the boy के साथ हम who या that में से कोई भी relative pronoun लगा सकते हैं. तो ये जो है ना इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ के अंदर हम डिफाइनिंग क्लोज में इस तरीके का डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं. कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, और जब बाद में ऑब्जेक्ट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ करके भी वाक्य जो है वो बनाया जा सकता है. साधारण शब्दों में ये वाक्य चार तरीके से बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु आई गेव माई बुक is very poor. The boy whom I gave my book is very poor. The boy that I gave my book is very poor. And the boy I gave my book is very poor. ये चारों कंस्ट्रक्शन इसमें सही हैं. इसी तरीके से जब शुरू में नाउन जो है
वो बेजान चीज़ होती है, चाहे सब्जेक्ट पर आदमी नहीं होता बल्कि कोई बेजान चीज़ होती है, तो उस केस के अंदर जब शुरू में अगर कोई वस्तु सब्जेक्ट है, समथिंग है, तो उस केस में हम प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार विच वन द फर्स्ट प्राइज इज वेरी वेल बिल्ट। तो इसमें दी कार जहाँ पे ये सब्जेक्ट है जिसने इनाम जीता था, तो इसमें विच या दैट लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट लगा हुआ हो, तो इसके अंदर भी हम 3 तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार विच वन द फर्स्ट प्राइज, द कार विच आई बॉट लास्ट ईयर, द कार दैट आई बॉट लास्ट ईयर, या द कार आई बॉट लास्ट ईयर इज वेरी वेल बिल्ट। तो इसमें तीनों ही तरीके से वाक्य ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई, वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में लगा हुआ है। तो इसमें जब हम रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ देते हैं तो इसको ग्रामर की भाषा में जीरो रिलेटिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें विच या हु की बजाय जनरली दैट ही लगाना होता है, जैसे ऑल है, लिटिल है, मच है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये समवन, समथिंग है। तो इस तरह के शब्दों के बाद जो दैट का प्रयोग है वो प्रेफरेबल होता है और कई जगह पे तो कंपलसरी होता है। ऑल दैट आई वांट टू से इज दैट ही इज अनरिलायबल। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ ये है कि वो विश्वास के लायक नहीं है। तो ऑल के बाद हम हमेशा दैट ही लगाते हैं, विच ही नहीं लगाते। इसी तरीके से ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट आई हैव सीन। तो यहाँ पे जो है वन ऑफ द बेस्ट टीचर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके बाद हु या हुम नहीं लगाएंगे, हम केवल दैट का ही प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ बातें जो हैं वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के बारे में थी। इससे जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है वो इस क्लोज से कैसे डिफरेंट होती है और उसमें वहाँ नियम कैसे बदल जाते हैं, थोड़ा से कुछ बातें उस संदर्भ में भी मैं अब करना चाहता हूँ। तो नंबर 1 तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के अंदर जो शुरू में दिया गया नाउन होता है उसको हम अच्छी तरह समझते हैं, उसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे दिमाग में कभी ये सवाल पैदा नहीं होता कि ये नाउन कौन है, किसके बारे में जिक्र हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माई फादर के बारे में कोई बात कहें तो हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं कौन माई फादर है, तो ये एक अंडरस्टूड है। और इसके बाद जो क्लोज आएगी, जो फादर के बारे में कुछ बात हमें बताएगी, वो हमेशा नॉन डिफाइनिंग होती है। माई फादर हु इज ए फार्मर इज वेरी लेबोरियस। तो हु इज ए फार्मर ये माई फादर के बारे में बताता है, ये उसको डिफाइन नहीं करता, ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए इसको हम वाक्य का जरूरी हिस्सा ना समझ करके इसके बीच में कोमे पा देते हैं। जहाँ से नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज शुरू होती है उससे पहले भी कोमा आता है, और जहाँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज खत्म होती है उसके बाद भी कोमा आता है। बगैर कोमा लगाए जो है मीनिंग कई बार गलत हो जाता है। नंबर 2, रिलेटिव नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग नहीं होता। कभी भी हम ये नहीं कहते कि माई फादर who is a businessman, we don't say that he is a businessman. In defining relative clause, who and that can either of the two can be used. But in non-defining relative clause, we will have to use who for person and which for objects. Which का प्रयोग हमें objects के लिए करना पड़ेगा और who का प्रयोग हमें आदमियों के लिए करना पड़ेगा। और अगर object है शुरू में और सब्जेक्ट बाद में है तो हम हु या हुम लगा सकते हैं आदमियों के लिए और विच लगा सकते हैं वस्तुओं के लिए, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते जैसे कि हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में छोड़ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हु आई लाइक वेरी मच इज वेरी जेंटल। माई फादर
whom I like very much is also correct. But we cannot omit who or whom, nor can we use that in such a sentence. So there is a difference in the rule governing the defining relative clause and non-defining relative clause. In defining relative clause, relative pronoun can be omitted when the noun is at the beginning is object and subject is after the relative pronoun. But this rule does not apply in the case of non-defining. Thus, we should have clear idea about defining and non-defining relative clause and how we can use them in forming sentences and how our doubts just can get clarified in case we have clear-cut knowledge about these two types of defining and non-defining clauses. I think my lecture would give you some new information, it would prove useful to you, and in case you find it useful, I request you to subscribe to this video.